Hello everyone, today we will start a new chapter, capacitance, very important chapter from CBSE point of view. But first of all, we will discuss some important terms. Our first topic will be net electric field inside the conductor is zero. तो सबसे पहले हम ये प्रूव करने वाले हैं कि किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होता है जब उसे किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है. दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. ओके, तो हम प्रूव कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो. नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ज़ीरो. हाउ, किस तरह से? एज वी नो, इलेक्ट्रिक लाइंस स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज. तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस यहाँ पर दिखानी होगी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है वो किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जा रहा है. एज वी नो, इलेक्ट्रिक लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट द नेगेटिव चार्ज. So these are electric lines of force. Electric lines of force. And this is the direction of electric field. क्योंकि डायरेक्शन इस साइड है तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव चार्ज से चली होंगी. एंड दिस इज here will be the positive charge. So many positive charges and here will be negative charges. Now we have to prove net electric field inside the conductor is zero. तो सबसे पहले हमें कंडक्टर कंसीडर कर लेते हैं. दिस इज अ कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस, द नेगेटिव चार्ज ऑफ द कंडक्टर विल मूव टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट से डिनोट करते हैं. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, the negative charge will move toward the left hand side of the conductor, and because of this negative charge, the positive charge will move toward the right hand side of the conductor. Then because there are some charge on the opposite corners, there will be some electric field. This is the induced electric field inside the conductor. This is the induced electric field, and the direction is from positive charge to the negative charge, which is opposite to the external electric field. ये जो डायरेक्शन है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है. लेट्स डिनोट इट बाय कैपिटल E, and the charge will move till the external electric field and the induced electric field become equal. This is the direction of external electric field and this is the direction of internal electric field. Both are opposite in direction. This is the direction of external electric field. This is the direction of internal induced electric field. Both are opposite in direction. But the magnitude of both are same in that case. So because the direction are opposite but magnitude are equal, so they will cancel each other. Because they cancel each other, the net electric field inside the conductor will be zero. कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचता, तो हम कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज zero. Hence you can write, place a conductor in an external electric field E naught. Place a conductor in an external electric field E naught. E naught से हम इसे डिनोट कर रहे हैं. Then what will happen? Inside conductor, negative charge will move towards left hand side. Inside conductor, negative charge will move towards left hand side. Will move towards left hand side. Because these are negative charge on the left hand side as shown in figure. क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग तो यही डायरेक्शन मिल रही है. And positive charge will move towards right hand side as per the diagram.
towards right hand side. Due to this, because of this movement of charges, due to this an electric field E is induced. एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है इनसाइड द कंडक्टर. ड्यू टू दिस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E is induced inside the conductor, and its direction is opposite, which is opposite to E naught, which is opposite to E naught. और चार्ज कब तक मूव करेंगे? चार्ज तब तक मूव करेंगे जब तक कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल ना हो जाए. The charge will continue to move. The charge will continue to move until E is equal E naught. That is, induced electric field is equal to the external electric field. ऐसा सिर्फ कंडक्टर में ही होगा. Because in conductor there are lot of free electrons. Charge will continue to move until E is equal E naught. So they will cancel each other. एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बचेगा कंडक्टर में? हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो. हेंस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो. हेंस यू कैन से दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. तो हमने प्रूव किया कि किसी भी कंडक्टर में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो जीरो होता है. कब? व्हेन इट इज प्लेस्ड in external electric field. Okay student, this is the topic. Net electric field inside the conductor is zero. Now the next topic. तो हम कह सकते हैं net charge inside a conductor is zero. तो किसी कंडक्टर में net charge zero होता है. Net charge inside a conductor is zero. हम इस समय एक कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि जब कभी भी किसी कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और उसके अंदर नेट चार्ज भी जीरो होता है. तो अभी हम प्रूफ करने वाले हैं नेट चार्ज इनसाइड कंडक्टर इज जीरो व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. अभी हमारे पास एक कंडीशन है कि उसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है. एज पर द गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम हमने क्या पढ़ रखा है? According to Gauss theorem, net electric flux inside a closed surface is 1 upon epsilon times the total charge enclosed inside that surface. That is flux, which is E dot ds integration. This is the flux, which is Q upon epsilon. This is the Gauss theorem. But अभी हमने ये पढ़ा कि किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो. तो but inside conductor net electric field E इसे नोट कर सकते हैं. net electric field is zero. तो in Gauss theorem in the equation E zero, तो everything on the left hand side is zero. Therefore 0 is equal to Q upon epsilon. By cross multiply Q is equal to 0. Hence you can say net charge inside the conductor is 0. In that case, the net charge inside the conductor is 0. Hence we proved that net electric field inside the conductor is 0 and net charge inside the conductor is 0. Now the next topic, electrostatic shielding. What is electrostatic shielding? Electrostatic shielding. Actually electro means charge, static मतलब at rest, shielding मतलब to protect, किसी चीज को बचाना. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग मीन्स इलेक्ट्रिसिटी से बचाना. कैसे? हमें पता है किसी भी कंडक्टर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. तो अगर मैं किसी चीज़ को, किसी डिवाइस को इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहता हूँ तो उसे मैं किसी होलो कंडक्टर में रख सकता हूँ. बिकॉज इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. इसे ही बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. तो हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को बचाने के लिए उसे कहाँ रखा? इनसाइड अ कंडक्टर. यू कैन से इन अ होलो कंडक्टर. टू प्रोटेक्ट समथिंग,
from electric field, place it inside a conductor. To protect something from electric field, place it inside a conductor because inside a conductor, electric field is zero. This phenomenon is called as electrostatic shielding. इस phenomenon को ही हम बोलते हैं electrostatic shielding. This phenomenon is called as electrostatic shielding. आप डेफिनेशन इस तरह से भी दे सकते हो, electrostatic shielding is the phenomenon of protecting a certain region of space from external electric field. स्पेस में किसी जगह को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हैं, उसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हो. Hence, this phenomenon is called electrostatic shielding. For example, during raining, it is advised to remain in a car instead of standing under a tree, instead of standing openly. So it is safer to remain inside the car because inside the car electric field will be zero. Hence, during raining it is advised to remain inside a car to protect himself from lightning. This is an example of electrostatic shielding. क्योंकि जब एक कार का फ्रेम एक कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा तो कोई भी पर्सन कार के अंदर सेफ रहेगा. अगर वो पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास हो सकती है, तो उसे एडवाइस किया जाएगा कि उसे ओपन ग्राउंड या किसी पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना है, उसे किसी शेल्टर में जाना है या ही हैव टू रिमेन इनसाइड द कार. तो ड्यूरिंग रेनिंग इट इज़ एडवाइज्ड टू रिमेन इनसाइड द कार टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लाइटनिंग. दिस कंसेप्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग सिंपली. ओके स्टूडेंट्स, तो आपने पढ़ा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, नेट चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है कैपेसिटर और कंडेंसर. आप कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोल सकते हो. कैपेसिटर और कंडेंसर. What are capacitors? What are condensers? Actually कोई भी कंडक्टर अपने अंदर एक चार्ज स्टोर कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ चार्जेस. तो ऐसा डिवाइस जो कुछ चार्ज को स्टोर कर सके, ऐसे डिवाइस को आप कैपेसिटर बोलते हो. इट इज़ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. It is an electrical device used to store electric charge or electric energy. तो कैपेसिटर क्या है? It is an electrical device used to store electric charge or electric energy. इसकी डेफिनेशन आप दूसरी तरह से भी दे सकते हो. Actually, capacitor is just an arrangement of conductors and some medium. तो ये एक अरेंजमेंट है. तो आप इसकी डेफिनेशन दूसरी तरह से भी लिख सकते हो. अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन अ स्मॉल स्पेस. तो इसकी सेकंड डेफिनेशन भी सही है. अ कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज or storing large amounts of electric charge and hence electric energy in a small space. Okay, this is the capacitor and this is the condenser. This is the definition of the capacitor. Okay students, now
हर एक कैपेसिटर की, हर एक कंडेंसर की, या बोलो हर एक कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितना चार्ज अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो इस कैपेसिटी को इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या कैपेसिटेंस बोला जाता है। नाउ द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर, आप कह सकते हो ऑफ अ कैपेसिटर। इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस। तो आप एक वर्ड याद रखोगे, एबिलिटी टू स्टोर, स्टोर करने की एबिलिटी। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज। कोई भी कैपेसिटर कितना चार्ज इकट्ठा कर सकता है, उसकी एबिलिटी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर or you can say a conductor or conductor to store electric charge or energy. Store electric charge or energy. Okay students, this is the electric capacity or capacitance, ability to store electric charge or energy. Now actually जब हम किसी कंडक्टर को कुछ चार्ज देते हैं, उसकी पोटेंशियल इंक्रीज करती है। एक्चुअली जब हम किसी भी कंडक्टर को, कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो उसकी पोटेंशियल इंक्रीज करती है। तो लेट सपोज Q is the charge given to a capacitor or conductor at any time t. हमने किसी भी समय किसी कंडक्टर को कोई चार्ज दिया है Q. As per the formula of potential, we know that V is equal 1/4 pi epsilon naught. तो जितना हम चार्ज दे रहे हैं उतना ही उस कंडक्टर का पोटेंशियल भी इंक्रीज हो रहा है। दैट इज V इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। तो जितना हम चार्ज देते हैं उतना ही पोटेंशियल उस कंडक्टर का इंक्रीज करता है। तो जब हमने चार्ज Q दिया तो कंडक्टर का पोटेंशियल लेट्स सपोज वो V तक इंक्रीज हो गया। दैट इज V इज द राइज इन पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर और कंडक्टर at that time. ओके स्टूडेंट, जब आपने चार्ज Q दिया तो उसका पोटेंशियल V तक इंक्रीज हो गया। तो जितना चार्ज आप इंक्रीज करोगे उतना ही पोटेंशियल भी इंक्रीज करेगा। यू कैन से दैट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, देन Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। बट अगर हम एक प्रोपोर्शन साइन को हटाएं तो एक कांस्टेंट आएगा C, एंड दिस C इज द कांस्टेंट which is called the capacitance. C is equal to Q by V, and that C is called the capacitance of the capacitor or conductor, where C is capacitance of the conductor. Okay student, this is the formula for the capacitance of a condenser or capacitor. इसको electric capacity भी बोलते हैं, that is the electric capacity. Now बात करते हैं इसके ग्राफ की, क्योंकि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। चार्ज और पोटेंशियल एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, तो इनके बीच में ग्राफ किस तरह से बनाया जा सकता है। जितना आप चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करते हो उतना ही पोटेंशियल भी इंक्रीज करता है। लेट x axis is gives us the charge, that it is charge axis, and y axis is potential axis. y axis के अलॉन्ग हम पोटेंशियल ले लेते हैं v, and x axis के अलॉन्ग हमने चार्ज लिया। as this is directly proportional, क्या वो directly proportional to v, hence the graph should be a straight line. जो ग्राफ होगा हमारा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और दूसरी बात, किसी भी कंडक्टर की
एक कैपेसिटी है और उसे V पोटेंशियल तक चार्ज दिया जा सकता है। अगर आप चार्ज को पोटेंशियल से ज़्यादा इंक्रीज करते हो तो ग्राफ थोड़ा सा इंक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, चार्ज की तरफ इंक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि उसकी पोटेंशियल एक फिक्स है। V पोटेंशियल तक कंडक्टर को चार्ज दिया जा सकता है। दैट इज द अनदर केस। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज द ग्राफ ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। नाउ अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस? एज वी नो द फॉर्मूला as C is equal Q upon V, as C is equal Q upon V. If Q is equal 1 कूलम, चार्ज 1 कूलम है और पोटेंशियल V is equal 1 वोल्ट और पोटेंशियल आप 1 वोल्ट ले रहे हो, it is 1 वोल्ट, then C will be 1 कूलम upon 1 वोल्ट which is equal to 1 फैरेड। 1 फैरेड कैपिटल F से इसे डिनोट किया जा सकता है। हेंस फैरेड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के जो यूनिट है वो क्या है? फैरेड है। कैपेसिटेंस के यूनिट है फैरेड। तो कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैरेड इफ 1 कूलम ऑफ द चार्ज इज रिक्वायर्ड टू रेज द पोटेंशियल थ्रू 1 वोल्ट। अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल आपको इंक्रीज करना चाहते हो आप और 1 कूलम का चार्ज उसके लिए चाहिए तो उसकी कैपेसिटी 1 फैरेड होगी। कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ कैपेसिटर is said to be 1 farad, is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge is required, coulomb of charge is required to raise the potential through 1 volt, to raise the potential through 1 volt, raise the potential through 1 volt, through 1 volt. That is called 1 farad. Okay students, that is the definition of the unit of capacitance, that is 1 farad. इसे 1 farad बोलते हैं. Also there are some smaller units of the capacitance. हमारे पास कुछ दूसरे यूनिट्स भी हैं. आप उसे स्मॉलर यूनिट्स बोल सकते हो, आप उसे कमर्शियल यूनिट्स भी बोल सकते हो. एक्चुअली स्मॉलर यूनिट्स जो हैं वो हम कई न्यूमेरिकल पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. सम स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटेंस. फर्स्ट वन इज माइक्रोफैरड. माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड and its symbol is 1 mu f, that is microfarad. 10 raised to power minus 6 फैरेड के बराबर होता है. नेक्स्ट इज 1 नैनोफैरड, नैनोफैरड which is 1 n small n f, this is a symbol. 10 to the power minus 9 farad. 1 picofarad, picofarad which is 1 small p f which is equal to 10 to the power minus 12 farad. These are some smaller units of the capacitance and this is the concept of capacitance. Okay, हमने पढ़ा कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या होता है, कंडेंसर क्या होता है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी और कैपेसिटेंस क्या है. नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस. डायमेंशनल फॉर्मूला of the capacitance. As we know the formula, C is equal Q upon V, as C is equal Q upon V, and also we know V is W upon Q, amount of work done in moving the charge. Therefore this formula become Q square upon W, and the dimension formula of Q is 80. Q के dimension formula क्या होते हैं? 80. has square, a square, t square, work done के ml2 t minus 2. This is the dimension formula. Hence m raised to power minus 1, l raised to power minus 2, t raised to power 4 and a raised to power 2.
this is the dimensional formula of the capacitance. This is the dimensional formula. Now factors affecting capacitance. कैपेसिटेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? एक्चुअली कैपेसिटेंस डिपेंड करती है सबसे पहले कैपेसिटर की शेप पर, कैपेसिटर के साइज पे। जो आप कंडक्टर यूज़ करना चाहते हो, कैपेसिटर बनाना चाहते हो, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज़ क्या है, उसके ऊपर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट फैक्टर इज शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर। शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर or you can say capacitor. This is the first factor on which capacitance depend. Number 2, nature of medium in which the conductor is located. I am not saying the nature of the material of the conductor. मैं कंडक्टर की नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस मीडियम की बात कर रहा हूँ जिसमें इस कंडक्टर को रखा गया है। नेचर ऑफ मीडियम इन विच द कंडक्टर इज लोकेटेड। थर्ड वन, इट डिपेंड्स नाइदर ऑन क्यू नाइदर ऑन वी। ये कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज पे और पोटेंशियल पे इंडिविजुअली डिपेंड नहीं करती, बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वोल्टेज। ये चार्ज और वोल्टेज का रेशियो है, तो ये सेपरेटली चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करती। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। एज वी नो C is equal to Q upon V. It is a ratio. It do not depend upon the separately on charge, separately on potential. It neither depend on charge nor on potential. Okay students, तो ये डिपेंड करती है शेप और साइज ऑफ कंडक्टर पे। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करती है नेचर ऑफ मीडियम इन विच द कंडक्टर इज लोकेटेड। तो हम मीडियम की बात कर रहे हैं। फोर्थ वन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। जिस मटेरियल का कंडक्टर या कैपेसिटर है उस पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि उस मीडियम के नेचर पे डिपेंड करती है जिसमें इस कंडक्टर को रखा गया है। हेंस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने पढ़ा कि ये नेचर पे डिपेंड करता है उस मीडियम के जिस पे इसे रखा गया है। ये क्यू पे और वी पे डिपेंड नहीं करता। These are the factors affecting capacitance of a capacitor. Now, what we discussed today, हमने पढ़ा capacitance. It is very important chapter. Thank you very much.